فیصل آباد کی سڑکیں شہریوں کے لیے غیر محفوظ ہو گئی۔ 7 دن میں 350 افراد راہ چلتے لٹ گئے۔ ایک ہفتے کے دوران ڈکیتی، رازنی اور چوری کی 748 وارداتیں رپورٹ ہوئی۔ تفصیلات یہ مقبول کی رپورٹ۔ فیصل آباد میں ایک ہفتہ کے دوران ڈکیتی، رہزنی اور چوری کی 748 وارداتیں رپورٹ ہوئیں۔ ڈاکوں کے گروہوں نے 17 ڈکیتی کی وارداتیں کی، 10 گھر لوٹ لیے گئے۔ رہزنی کی 276 وارداتیں رپورٹ ہوئیں۔ 7 دن میں 253 افراد اپنی موٹر سائیکل سے محروم کر دیے گئے۔ 230 موٹر سائیکل چوری ہوئے جبکہ 23 گن پوائنٹ پر چھین لیے گئے۔ ایک کار چھینی گئی جبکہ 3 کاریں مختلف مقامات سے چوری ہوئیں۔ 3 رکشے چھن گئے اور 13 مختلف مقامات سے چوری ہوئے۔ نقب زنی کی 88، چوری کی 56 وارداتیں رپورٹ ہوئیں۔ ایک ہفتہ کے دوران مویشی چوری کی 18، نوسر بازی کی 10 وارداتیں رپورٹ ہوئیں۔ پولیس کے دعووں کے باوجود فیصل آباد میں روزانہ وارداتوں کی سنچری کراس کرنا معمول بن چکا ہے۔ کیمرہ مین عرفان ملک کے ساتھ طیب مقبول، سٹی 41، فیصل آباد۔ حکومت جیت گئی، تاجر ہار گئے، ود ہولڈنگ ٹیکس کا معاملہ کیا ہے، اس رپورٹ میں دیکھیے۔ غلہ منڈی کے آڑھتیوں کی جانب سے دالوں اور چاول پر 2.5% ود ہولڈنگ ٹیکس کے نفاذ کے خلاف مسلسل 3 دن ہڑتال کی گئی۔ 31 جولائی سے 2 اگست تک آڑھتیوں کی جانب سے غلہ منڈیاں مکمل بند رکھی گئیں اور ود ہولڈنگ ٹیکس کو واپس لینے کا مطالبہ کیا گیا، مگر حکومت کی جانب سے مطالبات نہ مانے گئے۔ 3 دن کے بعد غلہ منڈی کی ہڑتال ختم کر دی گئی اور ہول سیل کا کاروبار دوبارہ شروع ہو گیا۔ آڑھتیوں کا کہنا ہے کہ 3 دن ہڑتال کی کال تھی جو ختم کر دی۔ اگلا لاہے عمل کمیٹی طے کرے گی جس پر منون عمل ہوگا۔ ابھی حال ہی میں ہماری جو میٹنگ ہوئی ہے وہ تمام دوستوں کی، اس میں یہ طے پایا ہے کہ تمام پاکستان کی منڈیوں سے ایک نمائندہ جو ہے نا جی وہ لیا جائے، اور وہ وہاں پہ ایک جگہ پہ لاہور میں یا کراچی میں یا فیصل آباد میں سب اجلاس ہوگا 6 اگست کو، اس میں لایا عمل بنایا جائے گا۔ جو بھی فیصلہ ہوگا تو پھر لمبی ہڑتال پہ جائیں گے، تو انشاءاللہ لمبی ہڑتال ہوگی۔ آڑھتی کہتے ہیں اگر مطالبات اب بھی نہ مانے گئے تو غیر معینہ مدت کے لیے ہڑتال کی جائے گی۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ فضیل احمد، سٹی 41، فیصل آباد۔ ٹوبہ ٹیکسنگ میں LPG کی مہنگے داموں فروخت عروج پر پہنچ گئی، اس رپورٹ میں دیکھیے۔ ٹوبہ ٹیکسنگ میں منمانے داموں پر LPG کی فروخت جاری۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ گیس کی قیمت میں اضافہ ہونے کے بعد 11 کلو 800 گرام کے گھریلو سلنڈر کی قیمت 2796 روپے مقرر کی گئی، لیکن گیس مہنگی ہونے کے باوجود بھی اوگرا کے مقرر کردہ نرخوں پر دستیاب نہیں۔ مارکیٹ میں سلنڈر 3300 سے 3400 روپے میں فروخت ہو رہا ہے۔ حکومتی نرخوں پر عمل درآمد کرانے میں انتظامیہ کی کارکردگی صفر ہے۔ گھریلو سلنڈر ہے مجھے 3400 روپے کا ملا ہے، لیکن جو پرائس کنٹرول مجسٹریٹ ہے ان کی کارکردگی بالکل زیرو ہے۔ اس قوم پہ ان کی حالت زار پہ رہے کو پہلے ہی بہت مہنگائی ہے، لوگوں کو آٹا نہیں مل رہا، روٹی نہیں لوگ پکا سکتے، مہنگائی لوگوں کی عام پہنچ سے دور ہے۔ وہ آپ کم کیا جائے پرائس کو LPG کو، تو تاکہ یہ جو LPG لوگوں کی پہنچ سے باہر نہ جا سکے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ ضلعی انتظامیہ اوگرا نوٹیفیکیشن کے مطابق گیس کی فراہمی یقینی بنائے تاکہ غریب شہریوں کو کچھ ریلیف مل سکے۔ کیمرہ مین فخر عباس کے ساتھ احمد ندیم، سٹی 41، ٹوبہ ٹیکسنگ۔ حکومت پنجاب کی تمام تر کوششیں ناکام، چکن کے کم نہ ہو سکے دام، اس رپورٹ میں دیکھیے۔ فیصل آباد میں چکن کی قیمت مسلسل اوپر، 600 کا ہنسا عبور کرنے کے قریب فی کلو قیمت 595 روپے ہو گئی۔ سبزیاں، آلو، پیاز، ٹماٹر کی بھی سینچری پہ سینچری۔ سبزی اور پھل کے سرکاری نرخ سے اضافی وصول کرنا دکانداروں نے اپنا حق سمجھ لیا۔ انتظامیہ اور مارکیٹ کمیٹی نے چپ سادھ لی۔ جنگ میں بھی چکن کی قیمت بے قابو، 4 روپے اضافے کے بعد 595 روپے فی کلو ہو گئی۔ مارکیٹ میں 650 روپے فی کلو تک دستیاب۔ سبزی اور پھلوں کی قیمتوں میں بھی دکانداروں کی منمانیاں جاری۔ لیمو، ادرک 6 سینچریاں پار کر گئے۔ مہنگائی سے عام صارف مشکلات کا شکار، انتظامیہ کی کارروائیوں کو ناکافی قرار دے دیا۔ چنیوٹ میں بھی چکن کے ساتھ سبزی اور فروٹ قیمتیں بھی آسمان سے باتیں کرنے لگی۔ لہسن 440 روپے کی بجائے 500 روپے، سیب گاچا اول 210 کی بجائے 300 روپے فروخت ہونے لگا۔ شہریوں کے بھی شکوے شکایات بڑھنے لگے۔ کہتے ہیں منافع خور اور ذخیرہ اندوز متحرک، جبکہ پرائس کنٹرول مجسٹریٹس مارکیٹ سے غائب ہیں۔ ٹوبہ ٹیکسنگ کی مارکیٹ کمیٹی نے بھی چکن، سبزیاں اور پھلوں کی قیمتوں کا تعین کر دیا۔ چکن 3 روپے اضافے کے بعد 594 روپے فی کلو ہو گیا۔ سبز مرچ کی سرکاری قیمت 98 روپے، مارکیٹ میں 150 روپے کلو فروخت۔ کیلا 125 روپے درجن، سیب 260، گرما 110، آڑو 230 روپے کلو میں بکنے لگا۔ چھوٹے شہر بڑوں سے مہنگے نکلے۔ احمد پور سیال میں سبزیاں، پھل اور چکن کی قیمتیں عوامی پہنچ سے دور۔ برائلر مرغی کا گوشت 650 روپے فی کلو گرام میں بیچا جانے لگا۔ کدو 300، کریلا بھنڈی 200، بینگن 160 روپے فی کلو فروخت۔ شہری پھٹ پڑے، کہتے ہیں انتظامیہ کی توجہ صرف بڑے شہروں پر ہے، چھوٹے شہروں میں بھی چیک اینڈ بیلنس کا کوئی نظام موجود نہیں۔
गरीब के वसाइल की चादर छोटी होती जा रही है। मामला क्या है, इस रिपोर्ट में देखते हैं। मजदूर की जिंदगी में सख्ती बढ़ती जा रही है। दिहाड़ी इंतहाई कम, ऊपर से मुआशी हालात की वजह से रोजगार के दरवाजे भी बंद। रोजाना बेशुमार मेहनत कश घंटा घर में सारा दिन इसी इंतजार में बैठे रहते हैं कि शायद कोई काम मिल जाए। चंद 100 रुपए कमा कर बच्चों के लिए आटा दाल खरीद लेंगे। दुखों की सख्ती इनके चेहरों से आया है। कहते हैं कई रोज दिहाड़ी नहीं मिलती, बच्चों का पेट पालना मुश्किल हो गया है। काम किधर मिलता है? काम वेले बैठे के चले जाते हैं, इधर काम है ही नहीं, कारोबार खत्म। मजदूर कहते हैं एक तरफ रोजगार नहीं तो दूसरी तरफ बिजली के बारी बिलों से शदीद तंग हैं। यहाँ खाने को नहीं, बिल कहाँ से भरने हैं। महंगाई भी बहुत है जी, काम और नहीं मिल रहा, बिल जेडे साढ़े को तरदे नहीं पे, ते परेशान है बहुत। मेहनत कश तबके का कहना है कि हुकूमत और कुछ नहीं कर सकती तो कम से कम बिजली ही सस्ती कर दे, ताकि जो थोड़ी बहुत दिहाड़ी मिले इनसे अपना और अपने बच्चों का पेट भर सके। कैमरामैन शाहजेब अली के साथ फजील अहमद, सिटी 41 फैसलाबाद। दूसरी जानिब जंग के काश्तकारों के लिए अपनी जमीनों में आबपाशी भी कड़ा इम्तिहान बन गया। इस रिपोर्ट में देखिए। जंग में महंगी बिजली के 22 ट्यूबवेल्स के बिल लाखों में आने लगे। हुकूमत रिलीफ फराहम करने में नाकाम। किसान कार ट्यूबवेल के लिए सोलर सिस्टम की बातें भी हवा में उड़ गईं। फसलें काश्त करना काश्तकारों के बस से बाहर होने लगा। सिलई सदर किसान इत्तेहाद वाजिद नौल का कहना था कि मौजूदा सूरत हाल के बाइस आम काश्तकार तबाहली का शिकार हैं। अब खेती बाड़ी नामुमकिन होती जा रही है। आम शहरी बेचारा किसान और बिलखसूस छोटा किसान, उसका बिल्कुल कोई पुरसान हाल नहीं। मेहरबानी फरमाकर किसानों को रिलीफ दें ताकि किसान खुशहाल हो सके। अगर किसान खुशहाल होगा तो ये मेरा मुल्क खुशहाल होगा, और मुल्क खुशहाल होने की सूरत में मुल्क दिन रात चुगनी तरक्की करेगा। किसानों ने मुतालबा किया कि हुकूमत बिजली के बिल्स में रिलीफ की फराहमी के अलावा ट्यूबवेल्स को सोलर सिस्टम पर मुंतकिल करने के प्रोजेक्ट पर भी काम तेजी से मुकम्मल करे। कैमरामैन अजीम अहमद के साथ अवैस खान, सिटी 41 जंग। चिन्योट में जंग रोड पर तजावुजात के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन। इस रिपोर्ट में देखिए। असिस्टेंट कमिश्नर चिन्योट शमसुर रहमान की जेर निगरानी झंग रोड पर तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन किया गया। बल्दिया के अमले ने तजावुजात का सामान कब्जे में ले लिया। असिस्टेंट कमिश्नर शमसुर रहमान का कहना है पहले तमाम रेडी बानों और दुकानदारों को तंबीह की गई। शोरकोट रफीकी चौक के करीब क्रिकेट ग्राउंड में मुबैना तौर पर गैर कानूनी दुकानों की तामीर पर असिस्टेंट कमिश्नर असफंद यार का एक्शन। एसी ने मौका पर पहुंचकर दुकानों की तामीर का काम रुकवाकर इन्हें फौरी गिराने के अहकामात भी जारी कर दिए। मामू कांजन के बाजारों में तजावुजात माफिया का कब्जा। रेल बाजार, मोबाइल मार्केट बाजार, लकड़ मंडी बाजार में दुकानदारों की मनमानियां। रेलवे स्टेशन सेम नहर पुल के अतराफ में भी दुकानदारों ने तजावुजात कायम कर ली। इधर फैसलाबाद में भी महकमा नहार की रख ब्रांच तजावुजात माफिया के निरगे में काबजीन के खिलाफ कार्रवाई अमल में न लाई जा सकी। दरियाओं के अतराफ इलाके भी माफिया ने घेर लिए। यहाँ आपको बताएं, तारीखी शहर जंग को निखारने का मंसूबा अफसरशाही की भीड़ चढ़ गया। मामला इस रिपोर्ट में देखिए। जंग की ताज़ीन और आराइश का मंसूबा मुकम्मल करने की डेडलाइन तो गुजर गई, मगर काम मुकम्मल ना हो सके। शहर की सिर्फ चंद दीवारें रंगो रोगन की गईं और चंद मॉडल नस्ब हुए, जबकि इंसाफगाह और जिले इंतजामिया का घर ही नजरअंदाज कर दिया गया। मुतअद्दिद इलाकों में स्ट्रीट लाइट्स के लिए LED पैनल भी ना लगाए जा सके। शहरी कहते हैं इंतजामिया की अदम दिलचस्पी से शहर का हुस्न मान पड़ गया है। जंग के हवाले से ये बात करना चाहता हूँ कि जो इन्होंने खूबसूरती के हवाले से जो काम शुरू किया था, इन्हें उसमें थोड़ा और तरक्की करनी चाहिए, क्योंकि ये जो इन्होंने काम किया था वो सारा फिर वही ख़राब हो गया। चौक चौराहों को सजाना चाहिए, दीवारों को रंग करना चाहिए। और इसके अलावा अगर बात की जाए तो जंग में ये जो सफाई वाले जिनकी ड्यूटी है, ये जो अफसर हैं वो बिल्कुल ही सुस्त हैं। वो जो काम करवाते हैं उनमें भी कोई अच्छी खासी तब्दीली नहीं नज़र आ रही। जी चौक की ताज़ीन और आराइश का काम आगे बढ़ सका, ना ही टफ टाइल और क्रॉन स्टॉल लग सके। कैमरामैन मोहम्मद अरबाब के साथ रमजान मिर्जा, सिटी 41 जंग। मियारी खुराक की फराहमी के लिए फैसलाबाद में पंजाब फूड अथॉरिटी की टीमें मुतहरिक हो गई। इस रिपोर्ट में देखते हैं। मुश्तरी होशियार बाश। देसी घी खाने के शौकीन खरीदारी करते वक्त तसल्ली कर लिया करें। देसी घी के नाम पर भी जालसाजी जारी है। फूड सेफ्टी टीमों ने गुलशन रहमान टाउन में छापा मारकर जाली देसी घी बनाने का कारखाना पकड़ लिया। फ्रीजर, ड्रम, सिलेंडर, चूल्हा, पंप और घी के टीन जब्त कर लिए। घी यूनिट में सफाई के नाकस इंतजामात, जगह जगह हशरात की बहुतात पाई गई। नॉन ट्रेसेबल देसी घी और बनास्पति घी बरामद होने पर यूनिट बंद कर दिया गया। देसी घी की तफसीली जांच पड़ताल के लिए फूड अथॉरिटी की टीम ने सैंपल लेबॉर्टरी भिजवा दिए हैं। कैमरा टीम के साथ इमरान असलम, सिटी 41 फैसलाबाद।
मॉनिटरिंग टीम मलिक रजाक का जनरल अस्पताल गुलाम अहमदाबाद का दौरा। मलिक रजाक ने अस्पताल के इंतजामी अमूर का जायजा लिया। एमएस जनरल अस्पताल आसिफ शहजाद ने तमाम शोबाजात से मुतल्लिक ब्रीफिंग दी। इंचार्ज मॉनिटरिंग टीम मलिक रजाक का कहना था कि जनरल अस्पताल में मरीजों को बेहतरीन सहूलियात फराहम की जा रही हैं। जड़ावाला में मॉनिटरिंग इंचार्ज तहसील अस्पताल खान बहादुर डोगर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। असिस्टेंट कमिश्नर सफदर शबीर, सीओ हेल्थ असफंद यार भी मौजूद थे। एमपीए खान बहादुर डोगर का कहना था कि अस्पताल में डॉक्टर्स की कमी को पूरा कर दिया और बेड्स की तादाद में भी इजाफा किया जा रहा है। असिस्टेंट कमिश्नर सफदर शबीर बोले, तहसील इंतजामिया सेहत के हवाले से मजीद सहूलियात फराहम करने में अपना भरपूर किरदार अदा करेगी। सीओ हेल्थ असफंद यार का कहना था कि अस्पताल की जल्द अपग्रेडेशन का काम मुकम्मल कर दिया जाएगा। सीओ हेल्थ अथॉरिटी डॉक्टर शहजाद खलील का डॉक्टर्स अस्पताल चिन्योट का दौरा। एमरजेंसी का मुआयना किया, मरीजों लवाहिकीन से फीडबैक लिया। डॉक्टर्स पैरामेडिकल स्टाफ को मुकम्मल ड्यूटी यकीनी बनाने की हिदायत की। डॉक्टर शहजाद खलील का कहना था कि अद्वियात अंदर से ही मिल रही हैं, किसी को बाहर से खरीदनी नहीं पड़ रही। और यहाँ बताएं आपको कि फैसलाबाद डिवीजन में 24 घंटे के दौरान गैस्ट्रो डायरिया के मरीज अस्पतालों में जा पहुंचे। इस रिपोर्ट में देखिए। बाद में गैस्ट्रो डायरिया के वार्ड जारी। सरकारी अस्पतालों में 24 घंटे के दौरान 615 मरीज रिपोर्ट हुए, जबकि खसरा के 4 नए मुश्तबा मरीज दाखिल। जंग डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में 24 घंटों के दौरान गैस्ट्रो और डायरिया के मरीजों की तादाद 55 हो गई, जबकि खसरे के 4 मुश्तबा मरीज रिपोर्ट हुए। अहमदपुर सयाल में खसरा के 2 मरीज तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल में दाखिल हुए। टोबा टेक सिंह में डायरिया और गैस्ट्रो के 51 मरीज सरकारी अस्पतालों में रिपोर्ट हुए, जबकि खसरा का कोई केस सामने नहीं आया। न्यूट में गैस्ट्रो और डायरिया के 56 मरीज, जबकि खसरा के 2 मुश्तबा मरीज रिपोर्ट हुए। ट्रैफिक हादसात मोहलक तरीन बीमारियों से भी ज्यादा जानलेवा साबित होने लगे। इस रिपोर्ट में देखते हैं। Q1122 ने जुलाई के महीने में टोबा रेसिंग में पेश आने वाले हादसात की रिपोर्ट जारी कर दी। एक माह के दौरान मुख्तलिफ हादसात में 75 अफराद लुकमाए अजल बने। रेस्क्यू को पूरे महीने में 17,574 कॉल्स मौसूल हुई। 584 ट्रैफिक हादसात, 3026 मेडिकल इमरजेंसी, 99 क्राइम, जबकि 15 आग लगने के वाकयात पेश आए। रेस्क्यू ने जुलाई में 4208 इमरजेंसी डील की। 314 मरीजों को जिला भर से पेशेंट रेफरल सिस्टम के जरिए अलाइड अस्पताल फैसलाबाद मुंतकिल किया गया। जो हमें जुलाई के मंथ में टोटल जो कॉल्स थी वो अराउंड 8,000 के थी, जिनमें से टोटल जो इमरजेंसी कॉल थी वो 4,000 के करीब इमरजेंसी कॉल्स थी। इन इमरजेंसी कॉल्स में मुख्तलिफ थी, जिसमें हम रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, जिसमें रोड सबसे ज़्यादा जो बात थी वो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में थी कि एक माह के अंदर 75 लोग वो एक्सपायर हो चुके हैं। उधर चिन्योट में जुलाई में ट्रैफिक हादसात में 7 अफराद जाम बहक हुए। एक माह के दौरान 518 ट्रैफिक हादसात रिपोर्ट हुए, जिनमें 644 अफराद जख्मी भी हुए। इनमें ज्यादा तादाद बगैर हेलमेट मोटरसाइकिल सवारों की थी। अगस्त शुरू होते ही जश्न आज़ादी की तैयारियां भी उरूज पर पहुंच गई। इस रिपोर्ट में देखिए। फैसलाबाद में जश्न आज़ादी की तैयारियों में इस्तेमाल होने वाले सामान के स्टॉल सज गए। अमीरपुर बाजार में स्टॉल्स पर कौमी परचम, छोटी झंडियां, बैजेस समेत बच्चों के लिए मुख्तलिफ अशिया मौजूद है। शहरियों की बड़ी तादाद बच्चों के हमरा जश्न आज़ादी की खरीदारी में मसरूफ नजर आने लगी। शहरी कहते हैं दुनिया भर को पैगाम देंगे कि हम इस परचम के साए तले एक हैं। स्पेशली फैसलाबाद में जश्न आज़ादी की तैयारियां अरूज पर हैं, ठीक है ना। बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, जवानों के लिए इधर शॉपिंग हम कर रहे हैं, ठीक है ना। ये आपके सामने स्टॉल लगे हुए हैं, क्योंकि ये इस दिन पाकिस्तान आज़ाद हुआ था और ये जो परचम है इसके साए के तले हम सब एक हैं। बच्चों के लिए खरीदने के लिए आए हैं 14 अगस्त के लिए, और झंडियाँ वगैरह, बैज वगैरह, कैप वगैरह ये खरीदेंगे। इंशाल्लाह हमारा मुल्क आज़ाद हुआ था और ये मनानी चाहिए जश्न आज़ादी। फैसलाबाद के अमीरपुर बाजार की तरह हर शाहरा और सड़क पर हर साल की तरह जश्न आज़ादी के स्टॉल सज गए हैं, जहां शहरी जश्न आज़ादी के लिए खरीदारी करते नजर आ रहे हैं। कैमरामैन शाहजेब अली के साथ फजील अहमद, सिटी 41 फैसलाबाद। जंग चिन्योट अहमदपुर सयाल में भी जश्न आज़ादी मनाने की तैयारियां जोरों शोर से जारी। इस रिपोर्ट में देखिए। जंग में यौम आज़ादी मनाने के लिए शहरी पुरजोश नजर आने लगे। जगह जगह आज़ादी स्टॉल्स सज गए। शाहराहों पर सब्ज हलाली परचमों की बहार आ गई। स्टॉल्स पर बच्चे बड़े सब खरीदारी करते हुए दिखाई दिए। रंग बिरंगे मलबूसात, कौमी परचम, झंडियां और बैजेस तवज्जो का मरकज बने हुए हैं, जबकि बच्चों के लिए खिलौनों के स्टॉल्स भी लगाए गए हैं। यौम आज़ादी एक बहुत खुशी का दिन है। 14 अगस्त हमारा मुल्क आज़ाद हुआ था, तो बच्चे देख रहे हैं, खरीदारी कर रहे हैं, झंडे ले रहे हैं, घर गलियां महल्ले सज रहे हैं। खास तौर पे हमारे रोड पे बहुत ज़्यादा स्टॉल्स लगते हैं।
चिन्नौर शहर में भी 14 अगस्त मनाने के लिए खास कर छोटे बच्चों का जज्बा दीदनी है। बच्चों के लिए जश्न आज़ादी की मुनासबत से लिबास और नौजवानों के लिए शर्ट्स के स्टॉल्स भी लग गए। जी बच्चों के लिए 14 अगस्त के लिए लेने आए हैं, ये जश्न आज़ादी के लिए बच्चे मांग रहे हैं। ये बच्चों के लिए पुनी ली है, कैचर ली है, चूड़ियाँ ली हैं, ऐसी चीज़ें ली हैं। अहमदपुर सियाल में भी शहरी यौम आज़ादी भरपूर जोश और जज्बे के साथ मनाने की तैयारी कर रहे हैं। कहते हैं 14 अगस्त को अपने वतन के साथ मोहब्बत का इजहार करेंगे।